زران اور شہیر دونوں گھر واپس آ گئے تھے۔ زران اپنے کمرے کی طرف نہیں گیا تھا کیونکہ عبادت یہیں پر تھی اور اس نے یہیں پر رہنا تھا۔ فی الحال وہ بہت تھک چکا تھا تو مزید گاڑی ڈرائیو کرنے کی ہمت اس میں بھی ہرگز نہ تھی، تو اب اس نے اپنی تھکن اتارنی تھی۔ اس کی بیوی اتنے دن سے آزاد تھی، آج وہ اس کی ساری آزادیاں ختم کرنے والا تھا۔ وہ آج پوری طرح اس کو اپنے آپ میں گم کر دینا چاہتا تھا۔ اس کو سوچتے اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی جبکہ گاڑی ڈرائیو کرتے شہیر نے اسے دیکھا۔ زران بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کچھ پتہ چل پائے گا دامیار شاہ کے بارے میں؟ میرا مطلب ہے کہ باریک بھائی نے جس طرح کہا کہ ہم اس کے ماضی کے بارے میں سب کچھ جان جائیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے دامیار شاہ اپنا سب کچھ کھول کر ہمارے پاس رکھ دے گا؟ شہیر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں یہ تو نہیں جانتا شہیر کہ ہمیں کچھ پتہ چلے گا یا نہیں، لیکن دامیار شاہ نے اپنے ماضی میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں اور جس بارے میں باریک بھائی بات کر رہے تھے، اگر اس میں کوئی حقیقت ہوئی تو پھر یہ سمجھو کہ ہمارا کام اور آسان ہو جائے گا۔ ایزا خود ہی ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہے گی، لیکن اگر یہ صرف ایک غلط فہمی ہوئی تو میرا مطلب ہے باریک بھائی بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ صرف ایک غلط فہمی کی بنا پر ہم اس چیز کے بارے میں پتہ لگائیں گے، ورنہ وہ عورت زرمینہ، دیکھو شہیر، وہ عورت زرمینہ جو بھی ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں، لیکن دامیار شاہ اتنا نیک اور اچھا انسان ہرگز نہیں ہے کہ اس عورت کے لیے مہینے کے 4-5 لاکھ کنویں میں پھینک دے۔ کوئی وجہ تو ہے ہی نا۔ پہلے اس نے تقریباً 2.5 سال پاگلوں کی طرح اس عورت کو ڈھونڈا ہے، وہ عورت اسے کہیں نہیں ملی تو اس نے اسے ڈھونڈنا چھوڑ دیا۔ پھر 2.5 سال کے بعد اسے تھوڑی انفارمیشن ملی، اس عورت سے ملنے کی بجائے، اسے جاننے کی بجائے اس نے اسے پیسے بھجوانا شروع کر دیے۔ کوئی وجہ تو ہوگی نا، وہ اتنی خوبصورت عورت ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی زران بھائی؟ شہیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو زران نے ہاں میں سر ہلایا۔ ایک خوبصورت عورت سے ایک مرد بے وجہ اتنا بے تکلف نہیں ہوتا، اسے لاکھوں کی اماؤنٹ سینڈ کر دے کہ وہ، اور پھر دامیار شاہ اتنا دیالو بھی ہرگز نہیں ہے کہ اپنی دولت مفت میں کسی پر لٹائے گا۔ زران یقین سے بول رہا تھا، آپ کی بات درست ہے بھائی، میں اس بات کو قبول کرتا ہوں، لیکن ایک مرد اور عورت میں ضروری نہیں کہ صرف یہی ایک رشتہ ہو سکتا ہے اس کی زرمینہ کے ساتھ کوئی خون کا تعلق ہو۔ شہیر کی سوچ کسی اور طرف جا رہی تھی۔ خون کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے شہیر؟ نہ تو وہ عورت اس کی ماں ہے اور نہ ہی بہن ہو سکتی ہے، اس کے باپ سے اس کی کوئی اور اولاد نہیں تھی، اور اس کی ماں ایک طوائف تھی جو کوٹھے پر ناچا گایا کرتی تھی، جس نے پہلے اس کے باپ سے شادی کی، پھر اس کے باپ کو قتل کیا تھا، اور میرے سننے میں آیا تھا کہ وہ عورت جیل میں ہی مر گئی۔ فرض کرو وہ زندہ بھی ہو تو کیا دامیار شاہ اپنے باپ کے قاتل سے کوئی تعلق رکھنا چاہے گا؟ اور ایسی عورت جو اسے پیدا کر کے اسے بھی مارنے کی کوشش کرے، وہ اس عورت کے لیے اپنے لاکھوں کی دولت نہیں لٹائے گا؟ دامیار شاہ کا دل اتنا بڑا بھی نہیں کہ وہ مفت میں کسی پر اپنی دولت لٹانے لگ جائے۔ وہ اپنے دوستوں کی بھی مدد نہیں کرتا۔ دوستوں کو چھوڑو، وہ تو جس عورت کے ساتھ رات گزارتا ہے صبح اس کو پوچھتا تک نہیں، تو ایسے میں اس عورت کے ساتھ دامیار کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہم خود بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ باقی وہ عورت سامنے آ جائے تو سمجھو ہمارا کام آسان ہو جائے گا، بس پتہ چل جائے کہ وہ عورت رہتی کہاں ہے اور ہمیں اس سے کس طرح سے ملنا ہے۔ صرف ایک دفعہ وہ ہمارے سامنے آ جائے تو دامیار کے ساتھ اس کا تعلق خود بخود واضح ہو جائے گا۔ باریک بھائی نے کہا تھا کہ اس بارے میں دامیار سے بات کر کے اس کے ایکسپریشنز نوٹ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے یہ زرمینہ نامی عورت دامیار شاہ کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ زران نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں کل جاؤں گا ملتان اس عورت کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے۔ انفارمیشن کے مطابق یہی پتہ چلا ہے وہ عورت ملتان میں رہتی ہے، وہاں پر اس کے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھی کروں گا میں۔ اگر تو وہ عورت ہمیں ملتان میں مل گئی تو میں اسے اپنے ساتھ ہی واپس لے کر آؤں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ زران نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ جبکہ گاڑی اب گھر کے مین گیٹ سے اندر کرتے ہوئے اس نے گاڑی پورچ میں لگائی تھی۔ ہال کی لائٹ آن تھی اور ٹی وی کے سامنے عبادت بیٹھی نظر آ گئی۔ میری بیوی تو میرا بے قراری سے انتظار کر رہی ہے، تمہاری بیوی کہیں نظر نہیں آ رہی؟ زران نے اندر کی طرف جھانکتے ہوئے کہا، میری بیوی میرا انتظار نہیں کرتی۔ شہیر کے لہجے میں عجیب سی تلخی تھی جسے زران نے محسوس کیا۔ وہ تو بس اسے چھیڑ رہا تھا، لیکن زران اس کے انداز کو دل پر لے گیا تھا۔ او کاکے، میں تو مذاق کر رہا ہوں، تو سیریس ہو گیا؟ زران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ چلے اب باقی کا مذاق اندر چل کر لیجیے گا، سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ اندر داخل ہوتے بولا تو زران بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ہی اندر آیا۔ وہ اندر آئے تو عبادت سامنے ہی صوفے پر بیٹھی تھی۔ انہیں دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئی، آ گئے آپ لوگ، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے بولی تھی، نہیں کھانا تو ہم باریک بھائی کے ساتھ ہی کھا کر آئے ہیں، تم بس ایک کپ چائے پلا دو، بلکہ ایسا کرو چائے لے کر کمرے میں ہی آ جاؤ۔ زران کہتے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا۔ ہاں ایک کپ
कप मेरे कमरे में भी दे जाना, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। शहीर थकन ज़दा अंदाज में बोला तो इबादत ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। शहीर के भी चले जाने पर वो खुद किचन की तरफ आ गई चाय बनाने के लिए। यकीनन इतने दिन अस्पताल में गुजार कर वो लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। ज़रान कल सुबह आया था सिर्फ कपड़े लेने के लिए, जबकि बारिक तो एक दफ़ा भी घर नहीं आया था। वो चारों ही इन दिनों बहुत मसरूफ़ थे। बज़ाहिर वो दामियार को अहमियत नहीं देते थे, वो इंसान उनके लिए बिल्कुल भी अहम नहीं था, लेकिन हकीकतन वो अहम था क्योंकि वो उनकी बहन का शोहर था। उनकी इकलौती लाडली बहन की ज़िंदगी उस इंसान के साथ जुड़ी हुई थी और उस इंसान की खातिर पिछले 3 दिन से वो अपना आप तक भुलाए हुए थे। अपनी बहन की खातिर वो अपने नापसंदीदा इंसान के लिए फ़िलहाल कुछ भी करने को तैयार थे। उन लोगों के लिए उनकी बहन की खुशियाँ अहमियत रखती थीं और इतना तो वो समझ चुके थे कि उनकी बहन की खुशियाँ उस इंसान के साथ जुड़ी हैं। आ गए आप? उसने कमरे में कदम रखा तो अरूश बेड पर बैठी थी। उसे जागते देख उसे हैरत हुई, लेकिन उसके सवाल पर उसने घूर कर उसे देखा। नहीं, अभी रास्ते में हूँ, कहती हो तो वापस चला जाता हूँ। वैसे भी मेरे आने पर खुशी तो हुई नहीं होगी तुम्हें, वो सर्द घुसीले लहजे में बोला। मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। उसे अलमारी की तरफ बढ़ते देख वो फ़ौरन उठकर उसके कपड़े निकालने लगी और 2 मिनट में ट्राउज़र और टी-शर्ट निकाल ली थी उसकी खातिर। जबकि वो एक नज़र उसके हाथों में मौजूद कपड़ों को देखने लगा और फिर उसे नज़रअंदाज करते वैसे एक ट्राउज़र और शर्ट निकाल कर ड्रेसिंग रूम में चला गया। उसकी नाराज़गी को महसूस करते अरूश शर्मिंदगी की गहराइयों में गिरती बाहर टहलते हुए उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। वो 2-3 मिनट में ही बाहर आ गया था। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। उसे आते देख अरूश ने मज़ीद अपनी खिदमत पेश की थी। इस एहसान की ज़रूरत नहीं, मैं खाना खा कर आया हूँ। बारिक भाई के साथ वही सर्द और बर्फीला लहजा। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, काफ़ी थकन हो रही होगी ना आपको। मैं अच्छी सी चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। वो उसकी बात का बुरा मनाए बगैर कमरे से निकलने लगी जब सामने से इबादत कमरे में दाखिल हुई। शुक्रिया इबादत बेटा, मुझे चाय की बहुत शदीद तलब थी। वो उसके हाथ से चाय लेता उसका शुक्रिया अदा करने लगा, जबकि अरूश अपना सा मुँह लेकर रह गई। अरूश, तुम्हें भी चाय पीनी है? उसने अरूश को खड़े देखकर पूछा तो उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। अरूश रात को चाय हरगिज़ नहीं पीती थी। वैसे भी उसके हाथ में एक ही कप था जो वो ज़रान के लिए ले जा रही थी। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। वो मुस्कुरा कर कहती कमरे से निकल गई, जबकि वो वापस कमरे में आती शहीर के दूसरे साइड पर आकर बैठ गई। उसका इरादा शहीर से बात करने का था, उससे माफ़ी मांगने का था, लेकिन शहीर तो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहा था और कप साइड पर रखता बिस्तर पर लेट चुका था। और फिर उसने कमरे की लाइट ऑफ करके ये भी वाज़ेह कर दिया था कि वो उसे बिल्कुल भी मुंह लगाने का कोई इरादा नहीं। और फिर उसने कमरे की लाइट ऑफ करके ये भी वाज़ेह कर दिया था कि वो उसे मुंह लगाने के बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं रखता। उसका 2-3 दफ़ा दिल चाहा कि वो उसे मुखातिब करे, उससे बात करे, सारी पिछली गलत फहमियों को दूर करे, लेकिन शहीर का नज़रअंदाज करना उसे कुछ भी बोलने नहीं दे रहा था। वो चाहकर भी बात नहीं कर पा रही थी। हाँ, वो उसके इस तरह से नज़रअंदाज करने वाले अंदाज को कबूल नहीं कर पा रही थी। कहाँ वो उसकी खुशियों की खातिर कुछ भी करने को तैयार रहता था और कहाँ अब इतने दिनों से उसकी तरफ देखा तक नहीं, अपनी तौहीन समझ रहा था उसकी तरफ देखना भी। वो कितनी ही देर उसकी पीठ को घूरती रही और फिर ये सोच कर के वो थक गया, अपनी बात बात पर उधार रखती उसके साथ ही लेट गई थी। वो चाय कमरे में लेकर आई तो ज़रान सिर्फ ट्राउज़र पहने शर्टलेस पूरे कमरे में घूम रहा था। मिस्टर बेशरम, ये क्या हो रहा है? का आपको पता नहीं है कि यहाँ एक प्यारी सी शर्मीली सी लड़की भी इस कमरे में रहती है जो आपको इस तरह से आधी नंगी हालत में नहीं देख सकती? वो आंखों पर हाथ रख के अंदर दाखिल होते हुए बोली, जबकि वो कप उसके हाथ से थाम कर पीछे की तरफ रखते हुए उसे खुद से लगा गया। कोई बात नहीं, मैं हूं ना इस प्यारी सी शर्मीली सी लड़की की शर्मो हया दूर करने के लिए। इबादत ने उसके चेहरे को देखा, कितना प्यारा था ना वो शख्स। वो जब भी उसे देखती थी उसमें खो जाती थी। वो 6 फीट से निकलता कद, चौड़ा सीना, डार्क ब्राउन आंखें, सुर्ख सफ़ेद रंगत, माथे पर बिखरे बाल और उनाबी होंठ। वो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। उसकी सहरज़दा शख्सियत, तमाम लड़कियां दीवानी थी उसकी शख्सियत की, लेकिन ज़रान शाह ने आज तक किसी को नहीं देखा, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका था, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत का दीवाना, उस पर जान लुटाने वाला। वो मुस्कुराई थी उसे देखकर। कुछ ज़्यादा हंसी नहीं आ रही तुम्हें आजकल? लगता है इतने दिनों से दूर हो, कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गई हो।
वो अपने कमरे में आ गया था। ज़बर तो अपने ऑफिसर्स के साथ बाहर था, जबकि उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा उसके फ़ोन पर कॉल आने लगी थी। फ़ोन उठाया तो ज़ोरिश का नंबर जगमगा रहा था। उसके लब मुस्कुरा दिए थे। अस्सलामुअलैकुम, लगता है मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही है मेरी जान, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, जी हाँ, और क्यों, मुझे नहीं करना चाहिए कि आपको मिस? बारिक, सब लोग घर से होकर गए हैं सिवाय आपके। आपके तो सिर्फ कपड़े ही भेजे जा रही हूँ मैं। आप सुबह वापस आएंगे ना? उसके सलाम के जवाब में तो वो ऐसे शुरू हुई कि अब चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। इंशाल्लाह सुबह घर का चक्कर लगाऊंगा। अब मेरी बीवी मुझे इतना मिस कर रही है तो एक चक्कर तो बनता ही है। वो मुस्कुराते हुए बोला था। जी हाँ, बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं। कितने दिन हो गए हैं, आपका चेहरा तक नहीं देखा। वो उदासी से बोली तो बारिक के दिल को कुछ हुआ। चलो आता हूँ सुबह, बताओ मुझे क्या मिलेगा? वो मुस्कुराते हुए उससे गुफ्तगू तवील करने लगा। जब तक ज़बर आता था वो उससे काफ़ी देर बात करने का इरादा रखता था। इतनी प्यारी सी बीवी मिलेगी इंतज़ार में बैठी हुई। फ़ौरन जवाब आया था दूसरी तरफ से, प्यारी सी बीवी मिलेगी, फिर तो समझो हो गया काम। वो उसे छेड़ते हुए ज़ुमाइनी अंदाज में बोला तो दूसरी तरफ से फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने दांतों तले लब दबाते वो आंखें मीच गई। जी नहीं, मेरा मतलब है इंतज़ार कर रही हूँ आपका, इंतज़ार में मिलेगी आपकी बीवी आपको, कोई और मतलब ना निकालें। कैसा मतलब? वो उसकी बात काटते उल्टा सवाल करने लगा। वैसे ही जैसे मतलब आप निकाल रहे हैं। यकीनन वो हार नहीं मानना चाहती थी। अरे मैं कौन से मतलब निकाल रहा हूँ यार, तुम खुद ही अपने मतलब निकाल रही हो और फिर ठीक से मुझे समझा भी नहीं रही हो। तुम्हारी ये अजीबोगरीब बातें मुझे आजकल वैसे भी बिल्कुल समझ नहीं आती। बीवी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा ज़ुमाइनी किस्म की बातें करने लगी हो आजकल? वो लब दबाए बोल रहा था, जबकि दूसरी तरफ जोरिश तो मानो कानों को हाथ लगा रही थी। बस कर दें बारिक, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आप घर आएँ बस। वो बात ही ख़त्म कर देना चाहती थी क्योंकि जानती थी अब बारिक उसकी छोटी से छोटी बात को अपने अंदाज में लेकर उसे खूब तंग करेगा। ऐसे कैसे? पहले तुम मेरी बात का जवाब दो, आखिर कहना क्या चाहती थी तुम? उफ बारिक, मैं कुछ नहीं कहना चाहती थी। फ़ोन रखें आप और सुबह आ जाइएगा, मैं वेट करूँगी आपका। वो कहते हुए फ़ोन रखने लगी थी। अरे यार रुको तो सही, थोड़ी देर बात करो ना। ज़बर अपने ऑफिसर के साथ गया हुआ है, मैं बिल्कुल अकेला यहाँ बोर हो रहा हूँ। इससे पहले कि वो फ़ोन रखती वो बोल पड़ा। हाँ तो बीवी से इतने दूर रहेंगे तो बोर ही होंगे ना? वो शरारत से बोली। मेरी तो रग रग मेरी बीवी के पास आने को फुड़क रही है, लेकिन क्या है ना, मेरी बीवी सिर्फ दूर से ही बातें करती है, पास आने पर सारे कसबल निकल जाते हैं मेरी बीवी के। वो हर बात को अपने हिसाब से मतलब निकाल कर बोल रहा था, बल्कि दूसरी तरफ उसकी बातों पर वो लाल गुलाल हुए जा रही थी। मुझे नहीं करनी आपसे बातें, फ़ोन रखें आप। वो नाराज़गी से बोली। लेकिन मुझे तो करनी है ना तुमसे बहुत सारी बातें, और मैं हरगिज़ फ़ोन नहीं रखने वाला। जब तक ज़बर आता है तब तक ये फ़ोन बंद नहीं होना चाहिए। वो हुक्म सुना रहा था। अच्छा मतलब जब तक ज़बर भाई आते हैं तब तक ही मेरी ज़रूरत है, बाद में नहीं। वो बात बदल गई। मेरी जान, तुम्हारी तो इतनी ज़रूरत है कि किसी के भी होने से तुम्हारी ज़रूरत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। सच कह रहा हूँ, इन 3 दिनों में बहुत मिस किया है तुम्हें। दिल कर रहा है कि उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँ। अगर सवाल ईज़ा का ना होता तो शायद मैं आ भी चुका होता। वो अपने दिल का हाल सुना रहा था। मैं जानती हूँ बारिक, आपको इस मामले में मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं। बाकी इंशाल्लाह दामियार भाई ठीक हो जाएंगे तो आपको भी घर आने का मौका मिल जाएगा। आप बस अपना ख्याल रखें। और रिज़ा का भी, मुझे बहुत खुशी हुई कि दामियार भाई के लिए आपने अपने दिल में थोड़ी सी नरमी पैदा कर ली। जो भी है वो हमारी ईज़ू का शोहर है। वो बोल ही रही थी जब दूसरी तरफ से उसे बारिक की आवाज़ सुनाई दी। उस इंसान के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है ज़ोरिश, और ना ही उस इंसान के लिए मेरे दिल में कभी कोई जगह पैदा हो सकती है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन की वजह से मजबूर हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही मेरी ये मजबूरी भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द मैं इस मसले का हल निकाल लूँगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उस इंसान के माज़ी के बारे में सब कुछ जानने की। जिस दिन उसका माज़ी मेरे सामने आ गया ना, मैं वो ईज़ा के सामने खोल कर रख दूंगा, और फिर तुम देखना कैसे ईज़ा खुद ही दामियार शाह जैसे इंसान के साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहेगी। वो तफसील से बता रहा था, जबकि दूसरी तरफ ज़ोरिश परेशान हो रही थी। बारिक, आप अब तक इन सब चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, अब बस कर दें बारिक। ईज़ा अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। पुरानी चीज़ों को निकाल कर बार बार सामने लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें अपनी बहन की बेहतरी सोचनी है, उसके बारे में सोचना है। दामियार शाह से हमें कोई मतलब नहीं सिवाय इसके कि वो ईज़ा का शौहर
रहा है। वो उसे समझा रही थी, मुझे मतलब है उस इंसान के साथ, मैं अपनी बहन को उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं करने दूंगा। वो उसकी बात काटते हुए बोला था, लेकिन बारेक आपकी बहन की ज़िंदगी तबाह नहीं हो रही, वो बदल चुका है, वो अपना माजी छोड़कर आगे की तरफ बढ़ चुका है। वक्त बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। दामियार ने अपने आप को कितना बदल दिया है, और अगर वो खुद ही बेहतरी की तरफ आ जाए तो हमें क्या ज़रूरत है उसे बार बार उसके तल्ख माजी की तरफ घसीटने की। अगर वो बेहतरी की तरफ आता ना जोरिश, तो सबसे पहले मैं उसका साथ देता। लेकिन तुम नहीं जानती, बहुत कुछ ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी बहन की ज़िंदगी को तबाह करेगा। कहने को दामियार शाह आगे बढ़ चुका है, वो इज़ा के साथ बिल्कुल ईमानदारी से चल रहा है, लेकिन उन गुनाहों का क्या जो पीछे माजी में कर चुका है, और उन गुनाहों की निशानियां भी हैं। मैं अपनी बहन को उसके गुनाहों की सज़ा नहीं दे सकता, इसलिए मैं उसके सारे गुनाह अपनी बहन के सामने लेकर आऊँगा, और फिर तुम देख लेना, इज़ा कभी उस इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहेगी। वो पूरे यकीन से कह रहा था, जब जोरी समझ नहीं पा रही थी कि वो उसके कौन से माजी के बारे में बात कर रहा है। ऐसा भी क्या छुपा हुआ है जो इज़ा के सामने आएगा, और गुनाहों के निशानियों से क्या मुराद थी उसकी। वो जितना सोच रही थी उतना ही उलझ रही थी, और अब उसकी ये उलझन सिर्फ बारीकी सुलझा सकता था। मैं घर आकर तुम्हें इस बारे में तफसील से बताऊंगा। जो कुछ हमें पता चला है वो काफ़ी होलनाक है, और सच में जोरिश इन चीज़ों को छोड़कर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दामियार जैसे शख्स को बढ़ावा ही देंगे, और कुछ भी नहीं। बेशक इज़ा उसके लिए अपने दिल को साफ कर चुकी है, लेकिन उसकी पूरी हकीकत जाने बगैर इज़ा उसे माफ़ नहीं कर सकती। मैं उसके सामने दामियार की हकीकत लेकर आऊँगा। अगर उसके बाद इज़ा में इतना हौसला हुआ कि वो दामियार शाह को उसके गुनाहों समेत कबूल कर सके, तो ही इज़ा उसके साथ रहेगी, वरना नहीं। खैर, मैं तुमसे सुबह बात करता हूँ, ज़बर आ रहा है। वो अपनी बात ख़त्म करते फ़ोन रखने लगा, जबकि जोरिश भी खुदा हाफिज़ करके फ़ोन बंद कर चुकी थी।